الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم. آج اس پریس ریلیز کے ذریعے مجلس بچاؤ تحریک آنے والے ہفتے کے دن بروز ہفتہ تاریخ 31 میں بروز ہفتہ 2 سے 5 بوقت 2 بجے سے 5 بجے تک جوائنٹ جوائنٹ ایکشن ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام دھرنا چوک پر وقف امینڈمنٹ بل کے خلاف جو احتجاج منظم کیا جا رہا ہے، تلنگانہ مارچ، جس کی سرپرستی جناب محمد مشتاق ملک صاحب صدر مسلم شبان کر رہے ہیں، اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی پہ مجلس بچاؤ تحریک ایک ذمہ دار آرگنائزیشن کی حیثیت سے مکمل طور پہ گامزن ہے. آج ناانصافیوں کا سلسلہ چل رہا سارے ملک میں. یہ بی جے پی کی گورنمنٹ بالخصوص یہ RSS سنگھ پریوار کی جانب سے ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کو ذہنی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے کمزور کرنے کے لیے یہ وقف امینڈمنٹ بل لایا گیا. اور یہ وقف امینڈمنٹ کے پیچھے اگر کوئی ذہن ہے، سازش ہے، تو یہ RSS کا ذہن ہے. یہ مسلمانوں کو ڈی فرانچائز کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کے اندر کمزور کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک سائیکالوجیکل وارفیئر ہے اور بخوبی ساری دنیا واقف ہے کہ آج ہندوستان کی عدالت میں گزشتہ 50 سال سے مقدمے چل رہے ہیں، اس مقدموں کے فیصلے نہیں ہوتے، اور یا سماجی انصاف کے لیے 70 سال میں اس ملک میں سماجی انصاف قائم نہیں ہو سکا. لیکن بی جے پی جو آج ہندو راشٹر ہندوتو کی بات کر رہی، وہ بی جے پی نے سب سے پہلے گزشتہ 10 سال سے ملک کی معاشی بحرانگی اور سماجی انصاف کے تار کر دیے لوگ. اب یہ ایک آرگنائزڈ مافیا کے تحت مسلمانوں کے وقف جائیداد کو لوٹنے کا ایک منصوبہ ہے وقف امینڈمنٹ بل کے ذریعے. اور اس کے جو کلازز بنے، اس کلازز کو آئینی اعتبار سے دیکھیں تو یہ دستور کے خلاف ہے. یہ وقف بچاؤ کے لیے دھرنا نہیں ہے. اس ملک میں جو مسلمان آج احتجاج کر رہے ہیں، اور بالخصوص دیگر جماعتیں، کانگریس، سماجوادی پارٹی، ترنمول کانگریس، RJD، تمام جماعتیں جو پارلیمنٹ میں احتجاج کیے، وہ مسلمانوں کے لیے بول کے، وقف کے لیے بول کے نہیں کیے، وہ دستور کو بچانے کے لیے، دستور کی روح کو باقی رکھنے کے لیے، اس ملک میں انصاف کو قائم رکھنے کے لیے احتجاج کیے. ان تمام جماعتوں کا مجلس بچاؤ تحریک اور مسلمان شکر گزار ہے. اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ جہاں انصاف کی بات آتی تو وہ مذہب اور چہرے دیکھ کے انصاف نہیں کیا جاتا. انصاف صرف حقوق کی بنیاد پہ انصاف کیا جاتا. اور بابری مسجد میں فیصلہ ضرور ہوا مگر انصاف نہیں ہوا. فیصلہ ضرور ہو گیا، فیصلہ ساتیر کر دیا گیا، مگر انصاف نہیں ہوا. گیان واپی مسجد کا ویسی مسئلہ چل رہا، سنبھال کی مسجد کا ویسی مسئلہ چل رہا، مدھیہ پردیش میں جامع مسجد کا مسئلہ ویسی چل رہا، دلی کے کئی وقف جائیدادوں کے اوپر ایسی مسئلہ چل رہا، مساجد پہ چل رہا. اب یہ سلسلہ چلے گا تو یہ ہندوستان میں آج کے آپ ٹی وی چینل کھول کے دیکھو کہ 50 سال قدیم مدرسے، 50 سال قدیم مساجد کی عمارتوں کو ڈھایا جا رہا یو پی کے اندر، جبکہ ہندوستان کا قانون ہے، ایکٹ ہے، اور اس ایکٹ کے تحت ایڈورس پوزیشن ہے. ایڈورس پوزیشن کے تحت بھی اگر دیکھا جائے تو جائز دعوے دار ہے اور حقدار ہے. اب یہ باور کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اس
मुल्क के अंदर क़ानूनी एतबार से कोई हक़ नहीं रखते। ये तमाम हालात के पेश नज़र मिल्लत के ज़िम्मेदारों की जानिब से मुख्तलिफ़ समाजी मजहबी तंजीमों की जानिब से तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी जनाब मुश्ताक मलिक साहब की सरपरस्ती में धरना चौक पे एक अजीम शान एक एहतजाज मुनक़िद किया गया। जिस तरह मिलियन मार्च रखा गया था NRC के ख़िलाफ़, मैं मजलिस बचाओ तहरीक के सदर की हैसियत से तमाम इंसाफ पसंद लोगों को बिला मज़हब व मिल्लत बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत इस एहतजाज में शरीक होना चाहिए और इस धरने को कामयाब बनाना चाहिए। ऐसे ही धरने सारे मुल्क में जो चल रहे हो उसकी तायीद करना चाहिए। हमारा जमहूरी हक़ है और आइन के मुताबिक हमारे जमहूरी हुकूक़ के लिए हमको जिद्दोजहद करना है। बरोज़ हफ्ता तारीख़ 31 में बावक्त 2 बजे से 5 बजे तक धरना चौक पे एहतजाजी जलसे आम मुनक़िद किया जाएगा। मैं बिलखुसूस हैदराबाद शहर तेलंगाना के तमाम मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ कि ये कोई मामूली बात नहीं है। आज मुसलमानों के आने वाली नस्लों के मुस्तक़बिल की बात है। आपकी माशियत को इस्तेकाम देने के लिए इस वक्फ बिल को की मुखालिफत करना है, आप अपने हक़ को हासिल करने के लिए। और जब तक कोई जमात कोई तहरीक कामयाब नहीं होती, जब तक जिसके लिए लड़ा जा रहा वो कौम निकल के उस तहरीक की उस मूवमेंट का साथ दे। आज हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है और हर मस्जिद कमेटी में बयान किया जा रहा है वक्फ बिल के ताल्लुक़ से। आज शऊर में आने का वक्त है, होश से लड़ने का वक्त है, जोश से लड़ने का वक्त है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट बिल को चैलेंज किया गया है और अब उसका जजमेंट रिज़र्व रखा हुआ है। हम ये तवक्को करते हैं कि बाबरी मस्जिद की तरह फ़ैसला नहीं होगा। जिस तरह बाबरी मस्जिद में फ़ैसला हुआ और फैसले के बाद ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के कई रिटायर्ड जजों के बयानात आए कि फ़ैसला कैसा हुआ, बीजेपी और नरेंद्र मोदी उन लोगों ने क्या खेल खेले। तो मोटे अल्फाज में एक बात है कि फ़ैसला ज़रूर हो गया मगर इंसाफ नहीं हुआ और ये सिलसिला चलते रहेगा। और ये वक्फ बिल में ऐसा होगा, ये लाखों करोड़ों रुपए का मुसलमानों के असासों का मसला है और मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे। जो भी हालात पैदा होंगे उस हालात का डटकर मुकाबला करेंगे, हर चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। आज तमाम मिल्लत के दानिशवरों की अपील है, तमाम ज़िम्मेदारों की अपील है कि हर मुसलमान अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करे। बरोज़ हफ्ता 2 बजे 31 में लाखों की तादाद में जमा होकर अपने हक़ हासिल करने की ताकत का मुजाहरा कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक़ में फ़ैसला लेके आएगा। हम अभी भी ऊपर उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से ये फ़ैसला ये वक्फ बिल को कलमदम कर दिया जाएगा और एक अच्छा माहौल पैदा होगा। इस मुल्क में हम गंगी जमनी तहज़ीब को ज़िंदा बाकी रखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी गुफ्तगू होंगी वो हफ्ते के दिन धरना चौक पे होंगे कि वक्फ बिल के क्या नुकात है, उससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है। वहाँ मुख्तलिफ़ दानिश्वर हजरात गुफ्तगू करेंगे और कौम को समझाएंगे। ये राब्ता कायम रहेगा और बेदारी की मुहिम जारी रहेगी, इसलिए कि कई मुसलमानों को नहीं मालूम है कि वक्फ बिल क्या है या वक्फ बिल में क्या है, वक्फ बोर्ड में क्या है, कितने असासे है। कुछ हमारे लोगों की भी कमज़ोरी है कि हम कौम को कभी बेदार नहीं रखे वक्फ के ताल्लुक़ से। मुसलमानों की वाबस्तगी कमज़ोर हो गई वक्फ से। आज अपनी वाबस्तगी को मजबूत कीजिए और इस असासों को आज अगर आप लड़ेंगे तो आने वाली नस्लें इसका फ़ायदा उठाएंगी। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मेरी दुआ है और तमाम तहरीक के रुफ़ा मेरे साथ है। हम पूरे लोग कोशिश कर रहे हैं कि धरना चौक पे इस जलसे को अल्लाह ताला इस धरने को कामयाब करे और हमारे हक़ में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हमारे हक़ में आए। कई क़ानूनदान बड़े बड़े क़ानूनदान सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों की तरफ से वक्फ बिल की मुखालिफत में हमारी वकालत कर रहे, बिलखुसूस कपिल सिब्बल साहब है और बड़े बड़े वकीला हैं, वीर सांघवी है,
बड़े बड़े वकीला लड़ रहे हैं। हम तवक्को रखते हैं कि उनकी जो वकालत है वो वकालत कामयाब हो और हमारे जो दस्तूरी हुकूक है वो पामाल ना हो और इस मुल्क में अमन व अमान कायम रहे। इस मुल्क में आने वाली नस्लों को एक अच्छा माहौल दे, तरक्की का माहौल दे। पहले हालात बॉर्डर के ऊपर बहुत ख़राब है, सारे बॉर्डर के ऊपर हर चार तरफ से मुल्क के ऊपर हमले हो रहे। एक आलमी साजिश है इस मुल्क के अंदर इस्तिराब पैदा करने की। सियोनी साजिश है, अमेरिका की साजिश है, चाइना की साजिश है, यूरोप की साजिश है कि इस मुल्क को कमज़ोर करना माशी एतबार से। और इसके पस पर्दा मेरी ये एक सोच है कि क्या ये वक्फ बिल के पीछे भी कोई इंटरनेशनल आलमी सतह की साजिश है कि यहाँ पे अक्सरियत और अक़लियत के बीच में दरार डालना, नफ़रत फैलाना और लड़ाई झगड़े करके मुल्क को कमज़ोर करना। इस पहलू से भी सोचना पड़ेगा। इंशाअल्लाह तमाम हजरात से मेरी पुरखुलूस गुजारिश है, अपील है, 31 में बरोज़ हफ्ता 2 बजे आप अपना फरीज़ा समझते हुए 4 काम है तो 4 काम को आगे बढ़ा दीजिए। पहले ये काम करिए, धरना चौक के ऊपर सुबाइए, इंशाअल्लाह जम के आइए। धरना चौक पे जम के एहतजाज होगा, जम के गुफ्तगू होगी। आखिर उद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।